मेरी जितनी बहनें हैं उनकी भी बहुत जल्दी शादी कर दिया फादर ने। भाभी भी मेरी पढ़ी लिखी नहीं है, सबकी बहुत छोटे उम्र में शादी हो गई। तो फिर दोबारा वो रिश्ता लेकर आए और फिर भी मुझे बिलीव नहीं हुआ कि नहीं, ये बोल तो रहे हैं, क्योंकि जीजा जी ने भी दीदी को लेकर तो बोल के गए और उन्होंने पढ़ाया नहीं। तो मैंने बोला कि मैं कैसे बिलीव करूँ कि आप मुझे पढ़ाएँगे? फिर उन्होंने मुझे एक लेटर दिया और उसे आप बोल सकते हैं कि एक बॉन्ड के टाइप कि उसमें उन्होंने लिखा कि मैरिजेस हेवन में बनती हैं और मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि मैं पढ़ाऊंगा। Hello and welcome to the Veer Naris and Veterans Outreach Program, a Metamorphs initiative. And I am Shakuntala Ajit Bhandarkar. Metamorphs is a non-profit voluntary group by veterans committed to nation building, restoring social values in society, nurturing lost glory of veterans, and thus contributing positively in whichever way they can. Do visit www.metamorphs.org for more about it. This is the fourth of this type of series related to the Veer Naris. Today, dear friends and viewers, we have with us Mrs. Ambreen Zaidi, the author of Warrior Widows. Welcome to our show, Ms. Ambreen Zaidi. Thank you, Mrs. Bhandarkar. Thank you for having me again. And thank you very much for taking the stories forward. Through your channel, the ladies, their stories, their struggles, and their successes are reaching a lot of people. So that is making a big difference. So it is our pleasure to Ms. Ambreen Zaidi. On behalf of Metamorphs, I would like to thank you for taking your time out and participating in this wonderful session. And we would like to know now, and our viewers also are keen to understand as to how you got to know about our Veer Nari, Mrs. Jayaprabha Mahato, wife of Lance Naik Rajkumar Mahato from Ranchi. Lance Naik Rajkumar Mahato belonged to the 12th Jat Regiment. Mrs. Jayaprabha had finished her 10th board exam when she got married to Lance Naik Rajkumar Mahato, and now she has a MSc Zoology and Masters in Education to her credit. She has two sons, Gaurav Mahato and Ankit Mahato. Gaurav Mahato has completed his BTech and presently working for TCS and preparing for his CAT exam, while Ankit Mahato is in his final year of BCA and wants to join the army and follow his dad's footsteps. Welcome to this show, Mrs. Jayaprabha Mahato. Thank you, ma'am. Mrs. Jayaprabha Mahato, we at Metamorphs are overwhelmed to have you amongst us in this wonderful session. I'm sure our viewers are going to listen to your story and get inspired to do and also follow your footsteps of pursuing their education and following their dreams. Mrs. Ambreen Zaidi. मैम जया के साथ देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जैसे मुझे इसके बारे में पता चला बिकॉज एज एवरीवन इज अवेयर कि व्हेन आई वाज अबाउट टू कंप्लीट माय बुक तो आई वाज नॉट गेटिंग माय एनी पब्लिशर्स बिकॉज पीपल फेल्ट के अरे ये रेपिटेशन ऑफ स्टोरीज होगा, इसमें क्या मजा आएगा, लोग क्यों खरीदेंगे. तो आई वेंट टू अ लॉट ऑफ पब्लिशर्स एंड दैट गिव मी अ बिग शॉक. मैं काफी मुझे मतलब 2-3 महीने लिख नहीं पाई थी ये सोच के कि ओके ये चीज को भी लोग कमर्शियली लेते हैं. हाँ, दीज सेंटिमेंट्स यहाँ तो एक मतलब फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो जाती हैं पूरा इससे और नोबडी इज विलिंग टू टेक द रिस्क. तो मिस भंडारकर 2-3 महीना आई वाज नॉट एबल टू जस्ट राइट एनीथिंग
in the book or for the book or about any lady. And then one day I get a call from an NGO, और उन्होंने बोला, then I put out my pain on Twitter कि see, this is what a soldier's life is. मतलब वो तो गया देश के लिए, बट पीछे से जो उसकी फैमिली का स्ट्रगल है उसके बारे में अगर मैं लिखना चाह रही हूँ तो मुझे पब्लिशर नहीं मिल रहा है. तो खैर बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आए, पब्लिशर्स भी मिले, फिर अपने फौजी ही पब्लिशर्स, टू बी ऑन द सेफर साइड के फिर से हर्ट ना करे, तो अपने फौजी पब्लिशर्स ही चूज किए मैंने. आई गॉट अ कॉल फ्रॉम माय एनजीओ. तो उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम आपकी जब बुक छपेगी तो उसके प्रोसीड्स कहाँ जाएंगे. मैंने कहा व्हाट, क्योंकि प्रोसीड्स, रॉयल्टी, ये सब हम फौजियों में बात ही नहीं होती. ना मेरे पब्लिशर्स ने बात की थी, ना मेरे दिमाग में ये बात आई थी. और मैंने कहा व्हाट आर यू सजेस्टिंग. तो और बोले हम ये एनजीओ चलाते हैं एंड वी वर्क फॉर द लेडीज एंड वी हेल्प देम, वी मेंटर देम, और उनका जिस तरह से भी हेल्प हो पाता है हम करते हैं. तो आई सेड अच्छा, तो मैं तो बहुत ज्यादा काफी विडोज के साथ जुड़ी हुई हूँ, आप कुछ के नाम बताइए. तो उन्होंने कुछ नाम बताए, मैं नहीं जानती थी, और आई स्टार्टेड नोटिंग देम डाउन. फिर जया का बताया, झारखंड का पूरा वो सब किया. तो मैं लिख के मैंने कहा लेट यू नो, आई गेट बैक टू यू, बिकॉज वी हैव नॉट थॉट अबाउट द प्रॉफिट्स एंड ये सब तो था ही नहीं दिमाग में उस टाइम पे. फिर जया को मैंने फेसबुक पे ढूंढना शुरू किया. पहले उस एनजीओ को ढूंढा कि उन्होंने बोला हमारा पेज है, सब कुछ है. फिर जया को ढूंढना शुरू किया फेसबुक पे कि कहाँ है. फिर जया दिखी. फिर देयर वाज अ म्यूचुअल फ्रेंड, उनके थ्रू जया का नंबर मिला. फिर जया से बात हुई तो फर्स्ट फोन कॉल जो जया का था वो इतना पॉजिटिव था ना, मतलब शी वाज नॉट इनटू अ सेल्फ पिटी मोड. तो जया के एटीट्यूड ने मुझे हिम्मत दी इससे और आगे बात करने के लिए. तब फिर मैंने इसको सारा एक्सप्लेन किया कि बेटा हम ऐसे ऐसे बुक लिख रहे हैं एंड कोविड वाज एट पीक एट दैट टाइम. तो इस तरह से है, तुम चाहोगी बात करना इस इशू के बारे में, क्योंकि मेनी पीपल, मिसेस भंडारकर, डोंट वांट टू रीलिव द इमोशंस, द ट्रॉमा. तो बोली हाँ मैम बिल्कुल, और आप बताइए कब क्या. तो हमारी हुई बातें काफी कुछ, फिर हम लोगों ने डिस्कस किया, कई बार हमारी बातें हुई. फिर उसी में मिसेस भंडारकर मेरे को लगा कि ये तो बहुत ही जबरदस्त लड़की है, and then look how young she is, and her children, they completed BTech, one is preparing for CAT. कहाँ से हिम्मत आई, एंड जो इसने स्टोरीज अपनी बताई, अपना बैकग्राउंड, एक जो मतलब एजुकेशन को लेके इसके दिल में था, इसने अपनी भी ड्रीम फुलफिल की टू गेट एजुकेटेड. सो आई फेल्ट के नहीं, दिस हैज टू गो फॉरवर्ड एंड दिस हैज टू बी टोल्ड टू द वर्ल्ड. तो दिस इज हाउ इट ऑल बिगैन विद जया. That is so inspiring and so interesting to know about Mrs. Jayaprabha Mahato. So, Mrs. Jayaprabha Mahato, in the book, The Warrior Widows, I just got to know that you were 10th pass when you got married, and your only condition to marry Lance Naik Rajkumar was provided he gives you the chance to pursue your education. So that was a very interesting story. I don't want to reveal it myself. Can you please share it with our viewers? Yeah, sure. Actually, हमारे इधर गांव में जो है ना, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाते नहीं है. और हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो किसान फैमिली है हम लोग. और हमारी हमसे भी पहले जो बड़े पापा की बेटियों की शादी हुई, वो भी बोलकर ले गए कि पढ़ाएंगे, और लगा दिया खेतों में. तो मुझे भी वो कहीं ना कहीं ये था कि मेरी भी एजुकेशन स्टॉप हो जाएगी अगर मेरी शादी हो जाती है तो. तो जब मेरे हस्बैंड देखने के लिए आए थे तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप शादी करोगे, तो मैंने सीधा ना कह दिया कि नहीं, मुझे नहीं करना है शादी. और मैं ना नहीं बोलूंगी, ना आपको बोलना होगा, क्योंकि हमारा जो सोसाइटी है उस पे लड़कियों को ये आजादी नहीं है कि वो ना बोले. और मेरा ना कहने का सिर्फ एक ही रीजन है कि मुझे पढ़ना है.
और अगर आप ना कहते हैं तो लगेगा कि लड़के ने ना कह दिया। बट मेरे हस्बैंड ने उतना अटैचमेंट तो था नहीं, उन्होंने अ, जो हम चाय नाश्ता दिए वो रोक दिया और कह कह दिया कि नहीं, लड़की ने हमें ना कह दिया, तो मैं अब आगे कोई चाय नाश्ता तो करूँगा नहीं। बट उनको जो मेरा था कि इसे पढ़ना है, तो मैं पढ़ाऊँगा डायरेक्टली, लड़की ने मुझे क्यों ना कह दिया? फिर बात तो वहाँ चली गई थी, हमारी बात कट गई शादी की। बट जो मीडिएटर थे, उनको मेरे हस्बैंड ने जाकर फिर से बोला कि नहीं, आप कन्विंस करो लड़की को कि मैं मुझे मेरी जो थिंकिंग है कि मैं नहीं पढ़ पाया। मैं आफ्टर 12th जो मैंने जो हमारा फ़ौज का एक रैली था, उसके थ्रू मैंने फ़ौज जॉइन कर लिया और मेरे घर में भी कोई पढ़े-लिखे नहीं है। मेरी जितनी बहनें हैं, उनकी भी बहुत जल्दी शादी कर दिया फादर ने। भाभी भी मेरी पढ़ी-लिखी नहीं है, सबकी बहुत छोटे उम्र में शादी हो गई। पर मुझे लगता है कि पढ़ाई का बहुत ज़रूरी है, जो मेरे आने वाले जनरेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर दोबारा वो रिश्ता लेकर आए और फिर भी मुझे बिलीव नहीं हुआ कि नहीं, ये बोल तो रहे हैं, क्योंकि जीजाजी ने भी दीदी को लेकर तो बोल के गए और उन्होंने पढ़ाया नहीं। तो मैंने बोला कि मैं कैसे बिलीव करूँ कि आप मुझे पढ़ाएँगे? फिर उन्होंने मुझे एक लेटर दिया और उसे आप बोल सकते हैं कि एक बॉन्ड के टाइप कि उसमें उन्होंने लिखा कि मैरिजेस हेवन में बनती हैं और हमारा जो है ये अगर तय है तो भगवान ने हमें मिलाया है और मैं आपको ये आश्वस्त करता हूँ कि मैं पढ़ाऊंगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहा और मुझे लगा, और इवन बाद में मुझे अभी भी लगता है कि वो 7 इयर्स का हमारा मैरिड लाइफ रहा और मैंने 7 इयर्स में सिर्फ एमएससी तक का एजुकेशन पूरा किया। तो ये मेरे हस्बैंड का भी ये था कि ये पढ़े, इसलिए नहीं कि इसे जॉब करना है, इसलिए कि हमारे जो बच्चे हैं, वे अ, आगे जाएँगे और हमारा जो अपना घर का स्थिति है, वो बेटर होगा। Wonderful. That's so inspiring. And I'm sure our viewers would love to hear more about you. Do watch our video till the end. And if you like this video, please do like, subscribe, and put in your comments in the comment box. So we have more such videos. We have made more such videos on Veer Naris for which you can look into the description and feel inspired, get inspired, and also support Metamorphs. So Jayaprabha, Mrs. Jayaprabha Mahato, I'm very impressed and also overwhelmed to listen to your story, from how you were consistent and you were so firm on getting your education. You didn't want to compromise via the marriage. And Lance Naik Rajkumar Mahato also gave you that equal support, and he assured you that your education will continue even after your wedding with him. And I really and truly agree to your point that women should be educated because they take care of the family, and so the family also in turn benefits by your education. I'm very happy to know that your boys are doing very well, and one of them in fact wants to join the army, and we wish him all the very best. Now, Thank you. coming to the day, that is on 4th June, you got a call from Lance Naik Rajkumar Mahato, and you got to speak to him. So what was it you spoke to him on that day? Can you please explain to our viewers and share your experience with us? On 4th June? On 4th June, ma'am? Yes, yes. On 4th June, I believe you got a call from Lance Naik Rajkumar, and from your neighbor's number, he had called you to tell you that Yes. he was promoted to the next Yes. rank, and you were overwhelmed and you were happy to listen to it, and he had some plans. So can you please share it with our viewers? Yes, I was there in final year MSc, and I was preparing for the exam,
and the call came in my professor. I was there in the tuition actually, so he called up there. That time हमारे टाइम पे क्या था ना कि कोई मोबाइल का तो ये था नहीं, हमारा ये तो हमारे घर पे या तो लगा नहीं था, नेबर पे आता था या फिर मैं ट्यूशन पे रहती थी वहां। तो हमारे प्रोफेसर के यहाँ वो फोन आया था और 7 जून को वो घर आने वाले थे और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी प्रमोशन हो गई है, अब हम लांस नायक से मेरा नायक का कैडर जाना है और बीच में मैं घर आऊंगा। और जैसा कि मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड हूँ, तो जितनी जल्दी और अच्छे से आप अपनी कंप्लीट करें सो दैट हम आगे की पढ़ाई और बीएड उनको था कि मैं टीचिंग जॉब में जाऊं, तो वो पढ़ाई हम करें। तो ये सारा था कि वो उन्होंने अपने सारा बेडिंग और सारे सामान खुद अरेंज किए और कुछ प्रॉब्लम्स थे घर के, वो डिस्कशन हुआ हमारे मदर इन लॉ के लिए, मेरी सिस्टर इन लॉ का भी कुछ इश्यूज चल रहे थे। तो वो बहुत ही मेरे हस्बैंड थे ना, सब फैमिली को लेकर चलने वाले, मतलब सबकी फिक्र सबके लिए, इवन बच्चों का बच्चे कैसे हैं, तो ये सारी बातें हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब वो छुट्टी पे घर आने वाले हैं। So आप उनके इंतजार में थे एंड बट उधर जहाँ पे ये पोस्टेड थे वहाँ कुछ और हो रहा था. So immediately after speaking to you, what happened? Can you please tell our viewers? बात तो मैं अपने कॉलेज चली गई, उसके बाद वहां से मैं अपने ननद के घर भी गई क्योंकि उनके यहाँ भी कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं आप जाकर मिलकर आना, उनसे बातें करना। मैं वहां से लौटी और अपने घर पर आई तो मुझे फोन आया कि मुझे एक फोन कॉल आया, तो भैया ने उठाया मेरे। तो भैया ने बोला कि वो तो अभी खाना खा रही है, वो बात नहीं कर सकती, तो इन्हें मुझे बात करना है। तो मैं गई बात करने के लिए, पर वो फिर मुझसे कुछ बोले नहीं और लास्टली पेरेंट्स को वो बोल रहे थे। फिर मुझे न कहीं लगा कि कुछ हुआ है, इंसिडेंट ऐसा हो चुका है, जो शायद वो कुछ हुआ है। इस तरह का जो उधर से कॉल आया कि और वो इंसिडेंट मुझसे नहीं बता रहे थे। तो फादर मेरे जब रिसीव किए तो उनको बोले क्या हुआ? क्या? तो मुझे लग रहा था ये मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। और रात की घटना थी ये कि उन्होंने बताया वहाँ कि एक ऑपरेशन चला था, सीआई ऑपरेशन। उन्हें पता था कि कुछ आतंकवादी आए हुए थे और इमीडिएट उन लोगों को उस ऑपरेशन में जाना था और वे उस ऑपरेशन में वहाँ गए और सिविल ड्रेस पे उनको था वहाँ और ये पता था कि कुछ मिलिटेंट्स आए हुए हैं। और रात में ये लोग लगभग 8 बजे ये सर्च ऑपरेशन हयान डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है कहीं, वहाँ ये थे और अंधेरे में ये लोग 2-2 का ग्रुप बनाकर चल रहे थे और ये बहुत सेफ, जो उनके फ्रेंड आए थे उन्होंने जिस तरह मुझे बताया कि ये बहुत सेफ ये पे थे। ऊपर 2 लोग, बीच में ये और फिर पीछे, इस तरह के टीम डिवाइडेड थे। बट एक पुलिया थी, उस पुलिया में ही ये लोग आमने-सामने टकरा गए और इनको लगा कि नहीं ये गाँव वाले नहीं हैं, ये मिलिटेंट्स हैं और इस तरह से दोनों में झड़प हुई और लास्टली उन्हें 3 बुलेट्स लगे, एक पैर पे, एक सीने पे, एक हाथ पे और फिर ये नहीं रहे। तो ये न्यूज़ मुझे नहीं दिया गया, ये मुझे नहीं बताया गया कि वो नहीं है। सिर्फ़ इतना पता था मुझे कि उनको गोली लगी है बट ही इज़ इन आईसीयू और उनको हम लोग रांची ला रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं और ठीक कंडीशन पे है। उनको पेरेंट्स को या जिनको लगा होगा कि ये शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएँगी और सभी ने मुझसे पहले किसी ने डिस्कस नहीं किया कि ऐसा कुछ हुआ है। बाद में जब मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उनको बताया और उससे 2 दिन पहले, क्योंकि ये 7 जून को आने वाले थे, 4 जून को ये घटना हुआ है और आने में जो टाइम लग गया, तब तक हमारे झारखंड में और रांची में तो इसके बारे में पता चल ही गया था, सभी लोगों को थ्रू मीडिया, पेपर। पर लोग मुझसे नहीं बताते थे और मैं जहाँ फ़ोन करने के लिए भी अपनी यूनिट पे कि क्या है, क्या पोज़ीशन है, तो जब तक मैं पीसीओ जाती थी, तो यहाँ से घर से भी लोग
दूसरी जगह से पहले ही इन्फॉर्म कर देते थे कि उनकी मिसेस फ़ोन करेंगी, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, तो आप लोग उन्हें अभी नहीं बताएँगे क्योंकि हमने नहीं बताया है। तो ये था और जब मैं बहुत प्रेयर कर रही थी कि नहीं उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, हमने मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मैं प्रेयर करते हुए जब मेरे फैमिली के साथ हम लोग अपने गाँव, अपने ससुराल पे जा रहे थे, तो रोड पर भी बहुत सारे बैनर्स और बहुत लोग, तब तक मुझे एहसास नहीं हो रहा था। ऐसा लगा कि नहीं चलो इतनी बड़ी घटना हुई है तो लोगों को दर्द है और वो लोग मेरे साथ हैं, इसलिए शायद इतनी भीड़ है। बट जब छोटे बेटे को मीडिया पर्सन ने बोला कि मतलब हम इन्हें फ़ोटो लेना है, तब मुझे कहीं न कहीं ये लगा और फिर मेरी फ्रेंड जो एयरपोर्ट से साथ में आई, उन्होंने मुझे फर्स्ट टाइम मेरे ससुराल पे ही उन्होंने बताया कि ऐसा हो गया। तो एकदम से मुझे जो न्यूज़ मिला, तो लगा कि अब क्या होगा? क्योंकि जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है वो अ, मतलब हम लोग फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। यही एक गवर्नमेंट जॉब में थे, इनको ही था जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम, बाकी हमारा खेत में काम करते थे। ससुर जो हमारे थे वो बीआईटी मिश्रा में ही ग्रुप डी थे, पियून थे। तो हमारा कैसे होगा? बहुत एडजस्ट क्योंकि मैं लड़ के पढ़ रही थी, मेरे हस्बैंड मेरे लिए सपोर्ट के लिए खड़े थे, बट फैमिली मेंबर्स में मेरे थे कि नहीं वो इस एक ही शर्त पर पढ़ेगी कि खेत में भी इनको काम करना है। तो मैं जब अपने ससुराल भी गई तो सारा सपोर्ट मेरे हस्बैंड का रहा शुरू से कि नहीं चाहे वो खेत में काम करना हो, रोपा-रोपना हो घर के सारे काम करना हो, घर में इलेक्ट्रिसिटी हमारे गाँव में नहीं थी उस टाइम। पानी की सुविधा नहीं थी, तो हम लोग बहुत कठिन से और सिर्फ़ हस्बैंड के सपोर्ट से हमने एक सपना देखा और उसको पूरा करने के लिए वो मेरे साथ थे, तो मैं कर रही थी। अगर अब वो नहीं है, तो मैं कैसे करूँगी? और फिर मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा? और ये जो 7 साल है, तो मैंने पढ़ाई की वजह से मैंने फ़ौज नहीं देखा, मुझे फ़ौज के बारे में भी कुछ नहीं पता। तो आगे क्या? तो बहुत सारा ऐसे कश्मकश, बहुत सारे क्वेश्चन्स और ये लेकिन उसी टाइम जब लोग नारा लगाते या लोग राजकुमार अमर रहे और जो यूनिटी मुझे दिखा गाँव में, गाँव के लोगों में और सिर्फ़ गाँव नहीं आस-पास के सभी लोग, फिर जितने पॉलिटिकल्स लीडर भी आते हैं थोड़े समय के लिए ही सही बट वो एक देते हैं कि आप उनकी पत्नी हो। वो एक आइडेंटिटी देना और बताना, तो वो भी एक कहीं न कहीं एक दुःख के साथ, एक प्राइड के साथ एक जो पेन है और प्राइड जब ये है, तो मुझे लगता है कि एक गर्व के साथ फिर हम लोग उसको अपना लेते हैं, अपनी आइडेंटिटी को हम अपनाते हैं। जैसे हमारा गाँव में है और विडोज़ को या जो आप वर्ड कहते हैं विधवा, ये वर्ड ही हमें अंदर से बहुत वीक बना देता है। अगर आप बोलोगे कि आप हमें वीर नारी और एक विधवा 2 वर्ड्स में कितना डिफरेंट है। सुनने में ही डिफरेंट है। एक वीर नारी आप जब बोलते हो ना तो एक अलग सी छवि आती है, हमारा एक फिगर अलग बनता है। वहीं अगर हम विधवा बोलते हैं तो एक असहाय और लाचार ये इमेज बनता है कि अब उसका वो क्या कर पाएगी इस तरह। तो वो फीलिंग भी मुझे आता था। मुझे पता नहीं था कि हमें ये संज्ञा दी जाती है वीर नारी की और ये फ़ौज का मैं तो उनको बहुत ये कहती हूँ कि एक बहुत जो वर्ड दिया है, उसका मान हम रख पाते हैं। हम वीर नारी अगर हमें वीर नारी बोला जाता है, तो हम में वो शक्ति पता नहीं कहाँ से आ जाती है, बट आती है और हम उसका मान रखते हैं। लोग कहते हैं कि ये वीर नारी है। तो हमारे गाँव में जैसे विधवा बोलते हैं या इस तरह से और जो रिचुअल्स हैं वो बहुत तोड़ने वाले होते हैं। यानी बात-बात पर आपको रियलाइज़ कराएँगे कि अब आप विधवा हैं और एक कहीं न कहीं अपशगुन की तरह भी कि हमारी वजह से हो गया या हम अच्छे काम में अगर हम आते हैं तो अपशगुन होता है। ये बहुत सारे चीज़ें आती हैं। सफ़ेद कपड़े में अपने आप को सफ़ेद लिबास में अपने आप को देखना अम, तो कहीं न कहीं एक डिप्रेशन या उधर की ओर हम जाते हैं, नेगेटिविटी की तरफ। बट मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी जितने अगर हमारे शहीद हैं या फिज़िकल या बैटल कैजुअल्टी की, जो फ़ौज से जुड़े हैं,
हमारा जो लिबास है वो बेशक सफेद है, लेकिन सफेद के साथ हमारा जो लिबास है वो केसरिया और हरा भी है। तो ये हमें बहुत बड़ी हिम्मत देती है। और जब हमें रिचुअल्स हुआ, उनको सलामी मिली, गाँव वाले जितने थे वो उसको पहली बार उन्होंने इस तरह का ये देखा, इतना ये से इतना सम्मान दिया, तो वो सम्मान हमें भी मिला। और जब हमें वो तिरंगा सौंपा गया फर्स्ट टाइम, जब आए जो जेसीओ आए थे, हवलदार आई डोंट नो, वो जब मुझे जो राष्ट्रीय ध्वज हमारा है वो जब हाथ में थमाए और बोले कि ये हम नहीं जलाते हैं, इसमें जो लिपट के आए हैं ये आपके लिए है। तो वो आज भी हम रखते हैं, और उसे जब भी कोई परेशानी है या अकेलापन है या कुछ परेशानी है, तो आप उसे खोल कर देख सकते हैं, हम उसे खोल कर देखते हैं, तो वो एक हिम्मत आती है कि ये तो है हमारे साथ और हमारी पहचान है। तो कहीं न कहीं वो एक मोटिवेशन हमेशा मिलता रहा, प्लस जो एजुकेशन हमें मेरे हस्बैंड ने दिया, वो बहुत काम आया। अगर मैं सिर्फ़ मैट्रिक पास रहती तो शायद आज बच्चों के लिए जो मैं कर रही हूँ, इवन मैं अपने लिए मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। तो वो कहीं न कहीं मेरे हस्बैंड का एक रहा। तो मैं सभी मतलब ख़ासकर देखो हमारे फ़ौज में हम जवानों में ज़्यादातर हम देखते हैं कि एजुकेशन को लगता है शादी हो गई तो अब क्या ज़रूरत है? पर ज़रूरत है। मैं अपने केसेस में ज़्यादातर पाती हूँ कि आज मैं जो भी हूँ वो मेरा एजुकेशन तो है, एजुकेशन की वजह से है। उसके बाद लाइफ एकदम लगा कि अब खत्म हो जाएगा, बच्चे का क्या फ्यूचर होगा? मुझे कुछ भी फ़ौज के बारे में पता नहीं था। फिर मेरे ससुराल में ही एक फ़ौजी भैया हैं, वो आए और बोले कि अब आप इसी तरह रोते रहेंगे तो कैसे होगा? आपको राजकुमार ने इतना पढ़ाया है, तो कुछ करना है। आप लेटर लिखो, आप लिखो जितने कॉन्डोलेंस लेटर आए हैं, तो मैंने बताया हाँ, आए हैं। फिर वो मैंने सारे कॉन्डोलेंस लेटर को अपने बेड पे रख के सारे स्प्रेड किया मैंने। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किसको रिप्लाई दूँ, किससे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूँ, किससे मैं कॉन्टैक्ट करूँ? फिर मुझे एक लेटर दिखा, उसपे लिखा हुआ था आवा, आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन। तो ये आवा वर्ड देखकर भी मुझे नहीं समझ में आया आवा क्या है, लेकिन जब फुल फॉर्म उसको पढ़ के मुझे समझ में आया कि नहीं, ये आर्मी वाइफ्स के लिए ही है। तो मुझे लगा कि यहाँ मैं अगर पूछती हूँ, यहाँ मैं अगर अप्रोच करती हूँ, तो मेबी मुझे कुछ हेल्प होगा। तो वो वो ज्योत्सना शर्मा मैम का एक लेटर था, ज्योत्सना मैम का, वो मैंने दिल्ली पे भी लिख के भेजा कि मैम आई एम सो एंड सो, मुझे आपका ये लेटर मिला है एंड आई एम फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ एमएससी, आई हैव 2 चिल्ड्रन। उस टाइम बड़ा बच्चा मेरा 5 इयर्स का था, छोटा वाला 2.5 साल का, और जो मैं जहाँ मेरे घर है, वहाँ से मेरा एमएच 5 किलोमीटर है, दीपाटोली जो कैंटोनमेंट एरिया है वो 2.5 किलोमीटर है। पर मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूँ? मैं कैसे कहाँ से शुरुआत करूँ? मुझे क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगे और आगे क्या होगा? तो फिर मैं डाल दिया मैंने लेटर, और विदिन मुझे 15 डेज़ वो रिप्लाई आया। मैंने 4 जून को ये हुआ, और मैंने वो लेटर डाल के फिर वो जून आई थिंक जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में मुझे एक वैन अपना जो आर्मी का है जिप्सी, उसपे एक मुझे ढूँढते हुए आए वो। मेरे ससुराल गए, तो मैं उस टाइम ससुराल पे नहीं थी। मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला कि मैं अभी सब करूँगी, लेकिन मैं अभी खेतों में काम नहीं कर पाऊँगी, आप लोग का हेल्प उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे फ़ोकस करना है अब अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, और मुझे उन्हें कुछ बनाना है। तो मैं जितना पॉसिबल होगा वो करूँगी, लेकिन मैं खेती के साथ मैं अब उतना नहीं कर पाऊँगी। ये मैंने उनको बोला, बट वो लोग भी मुझे बहुत हेल्प किए, और मैंने वहाँ से, क्योंकि वो एकदम गाँव है, इंटीरियर है, वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती है, मुझे एटलीस्ट 3 किलोमीटर पैदल चल के ही मुझे रोड तक आना, तो ये पॉसिबल नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि बहू वहाँ की है जो सूट नहीं पहन सकती है, वहाँ हमें साड़ी पहनना था। तो बहुत सारे इस तरह के बंधन थे वहाँ, तो फिर मुझे अपने पेरेंट्स के यहाँ आना पड़ा। और यहाँ आने के बाद जब मैंने लेटर लिखा, मुझे रिस्पॉन्स आया, जो मुझे ढूँढते हुए आए,
तो उन्होंने बोला कि आप जया प्रभा है? तो बोला यस सर। तो आपको यहाँ एक हमारा दीपाटोली है, उस पे एक मैम है, वो आपसे मिलना चाहती है, जीओसी मैम। मैम मुझे नहीं पता था जीओसी एंड जेसीओ क्या डिफरेंस होता है। मतलब वो भी मुझे नहीं पता कि इतना हाई रैंक होता है जीओसी। तो मैं हमेशा बहुत बार कंफ्यूज भी करती थी। और फिर जब मुझे मैम ने फर्स्ट टाइम यहाँ बुलाया, उस टाइम मैं 23 एज मेरी थी। तो जैसे ही मैम ने मुझे देखा, वो मुझे हग कर ली, और वो हग करके मतलब मुझे बाकायदे पकड़े रही थोड़ी देर। और उन्होंने बोला, अरे तुम तो बहुत छोटी हो। और खड़े खड़े ही मुझसे पूछा कि तुम कैसे आई हो? तो मैंने बोला कि मैं अपने अंकल के साथ उनके स्कूटर पे आई हूँ। तो बोला कि आर्मी से हेल्प चाहिए? बोला यस मैम। कुछ करना है? यस मैम। तो फिर अकेले आना पड़ेगा, मोबाइल होना पड़ेगा, स्कूटी सीखना पड़ेगा, किसी के साथ नहीं आना पड़ेगा। ये फर्स्ट लाइन के साथ मैं उनसे मिलती हूँ। तो मैं ये सोच ही नहीं सकती हूँ, ये सोच ही नहीं सकती हूँ कि मैं मतलब खुद ड्राइव करूँगी, स्कूटी चलाऊँगी। और अभी इस टाइम पे 2 महीने नहीं हुए हैं हस्बैंड को गए हुए, मैं वो नहीं सोच सकती थी। लेकिन वो मोटिवेशन और वो प्रेरणा जो मिसेस भारद्वाज, रेणु भारद्वाज उस टाइम यहाँ जीओसी मैम थी, वो मुझे मिली। और मेरा जो है मुझ में बहुत पॉजिटिवनेस उन्होंने भरा, मैं इतनी पॉजिटिव भी नहीं थी। फिर उन्होंने बोला कि आवा आपके लिए खड़ा है, मैं आपके लिए खड़ी हूँ, तो आगे क्या करना है, क्या चल रहा है लाइफ में? मैंने बोला मेरा एग्जाम है अगस्त में। तो मुझे बोला कि आप एग्जाम दे रहे हो फाइनल? मैं बोला नहीं मैम, मुझसे नहीं होगा अभी। उन्होंने बोला नहीं, तुम कर सकती हो, तुमसे होगा, और तुम्हें देना है एग्जाम। इतना बोलने के बाद फिर मुझे मतलब उनके मोटिवेशन पे मैंने एग्जाम दिया। बोला कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा तुम फेल हो जाओगी, तो ऐसे भी नेक्स्ट ईयर देना है, ऐसे भी आप नेक्स्ट ईयर दोगे, आप दे दो। उनके बोलने पर मैंने दे दिया, और मैं पास भी हो गई। उसके बाद फिर मैम ने मेरा प्लानिंग कर रखा था। मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपने आवा की। ये जो हमारे देश का बहुत बड़ा एनजीओ है, और बहुत कुछ करता है। मैं आज इस अपने बातों के थ्रू मैं बताना चाहूंगी कि आप फेथ रखिए अपने आवा पे, अपने विभाग पे, अपने आर्मी पे। वो आपके लिए है। तो जिस तरह मुझे आवा ने, मतलब मैम ने जो किया मेरे लिए, वो मैं तो उनको गॉड मदर ही बोलती हूँ। और फिर मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ गया वो, जब मैम का मिला। क्योंकि गाँव में ऐसा है कि वो वो नहीं देख सकते हैं कि मैं गाड़ी चलाऊँ या मैं इंडिपेंडेंट हूँ। वो फिर गलत बातें बोलते हैं कि अभी 2 दिन नहीं हुए, इनको देखो ये ऐसे। तो ये बातें भी शुरू हो गई। हमारे उधर मेरी सास को भी थोड़ी परेशान कर रहे थे, क्योंकि मेरे फादर इन लॉ नहीं हैं, तो उनको थोड़ा डाइन बोलकर भी परेशान किया गया था। हमारे अभी विच हंटिंग बहुत है, तो माँ को भी परेशान करते थे लोग। और मेरे हस्बैंड बहुत ही उसके लिए हमेशा कि ऐसा कुछ नहीं होता, हम पुलिस केस करेंगे, ये करेंगे। तो उनके रहते हुए लोग उतना उनको तंग नहीं करते थे, फिर भी हमें पैसे की माँग की नहीं, वो करते थे। तो वो मैं कभी-कभी अपने लिए भी सोचती थी कि ये लोग मेरे को भी बोलेंगे, और अगर मैं तुरंत स्कूटी ले रही हूँ, तो ये लोग और बात करेंगे। तो मैं इतना, जितना हम अपने लिए नहीं सोचते हैं, समाज के डर से हम आगे बढ़ना भी नहीं चाहते हैं। बट मुझे मैम का जो सपोर्ट रहा ना, क्योंकि जब एक बार मुझे मेरे गाँव में ही किसी ने तंग करने की कोशिश की, तो फिर मैंने मैम से अप्रोच किया। मैम ने तुरंत से एक जिप्सी गाड़ी में भर के 2-3 लोग भेज दिए। वहाँ वे जाकर बोलते हैं कि पूरा फौज इनके साथ है। वहाँ के सरपंच से मिलकर डायरेक्टली उस पर्सन को नहीं, उन्होंने बोला कि अगर इनको किसी ने कुछ किया ना, तो हम लोग यहाँ से नहीं देखते हैं। हम इन्हें ऐसा जगह ये लोग दिल्ली में भेज देंगे कि सारा लाइफ ये लोग स्ट्रगल करते रह जाएँगे, लेकिन आपका वो छूट कर नहीं आएगा। तो ये सपोर्ट रहा। उसके बाद से मेरे गाँव में ना मेरी मदर इन लॉ को और ना मुझे कभी किसी ने तंग नहीं किया। तो ये एक स्ट्रेंथ या ये एक प्रोटेक्शन मुझे अपनी आभा में, अपनी मैम के थ्रू मुझे दिखा। फिर मैम का था कि नहीं, अब आगे क्या करना है? मैं ऐसा करती हूँ, टीचिंग करना इंटरेस्ट है? बोला यस मैम, मुझे तो टीचिंग में ही जाना था। हाँ, तो मैम ने मुझे बोला कि आपका इंटरव्यू होगा,
और आप इंटरव्यू का तैयारी कर लो, आपके प्रैक्टिकल्स एग्जाम के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, आप आर्मी स्कूल में आप आओगे। तो मुझे ये भी नहीं पता मैम का जो पोस्ट है, मैम वहाँ की पैटर्न होती हैं और चेयर पर्सन होते हैं सर, तो ये मुझे नहीं पता था। बट मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा इंटरव्यू का मैम तैयारी करवा रही है, एक मैम मिसेस भादुड़िया मैम थी, कर्नल्स वाइफ, जो पीआरटी में वो एचएम थी। उनके घर मुझे भेजती थी कि आप जाओ और फ्लुएंसी थोड़ा अपना ठीक करो और एक डेमो की तैयारी करो। तो मैं शाम को उनके घर जाती थी और बहुत बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले मुझे। वो मैम मुझे तैयारी कराती थी, आ गई तुम्हारी जया प्रदा, एंड ऐसे हंसते थे और बहुत हेल्प किया मुझे। अब मुझे लग रहा था कि मैं ना एक प्रोसेस से आर्मी स्कूल जा रही हूँ, बट बाद में मुझे पता चला ये तो मैम इतने ये पे है, वो तो मुझे लेना ही था। बट मैंने किसी को निराश नहीं किया। जैसे मैंने आर्मी स्कूल में मेरा डेमो लेकर और एक कॉन्फिडेंट आया कि आपका हो गया बोल दिए प्रिंसिपल सर नेक्स्ट डे फोन करके कि आप 10 जनवरी को ज्वाइन कर रहे हैं। फिर मैं 10 जनवरी 2005 को मैंने स्कूल ज्वाइन किया फर्स्ट टाइम। और मैम उस टाइम जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया, मुझे क्लास 6 मिला, मैं साइंस पढ़ाती थी और धीरे-धीरे मतलब मेरी लाइफ नॉर्मल होने लगी। एंगेज हो गई मैं इन सभी चीज़ों में बच्चों के साथ, तो अच्छा लगता था, एक पॉजिटिवनेस आने लगा। और कभी-कभी कुछ एक यादें हैं, मैं थोड़ा शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे पास पैसे की कमी तो थी शुरू से हम लोग के पास। तो मैं गिन के मेरे पास 5 सूट थे। तो हमारे बच्चे ने एक बार पूछा कि मैम आपके पास सिर्फ 5 सूट है क्या? तो मैं सोचती हूँ हमारे बच्चे कितने नोटिस करते हैं और मेरे पास 5 ही सूट है, मैं जो ही रिपीट करती हूँ। तो एक ऐसे भी दिन थे और मैं ग्रूमिंग अपना जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये सब एनवायरनमेंट मुझे आर्मी स्कूल ने दिया वहाँ। और 10 इयर्स तक मैं आर्मी स्कूल में रही और बहुत कुछ सीखा मैंने आर्मी स्कूल से। एडवेंचर कैंप में गई, बच्चों के साथ इन्वॉल्वमेंट, टीचर्स का एक बहुत अच्छा ग्रुप, इवन अभी भी मैं उनके साथ अटैच्ड हूँ। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मुझे मिला। इसी बीच मिसेस भारद्वाज मुझे एक बार कि मैं जया का क्लास देखूँगी और वो आकर मेरे क्लास में खिड़की के पीछे आकर खड़ी हो गईं और तो मैं सब भूल गई। उनके डर से कि कोई मुझे वॉच कर रहा है और मुझे पता था कि वो आने वाली हैं। बट फिर वो मुझे बोली, उनको लगा कि ये थोड़ी डर गई है, मैं पीछे खड़ी हो गई। बट वो मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे में जो बिल्ड मतलब जितने सारे कॉन्फिडेंट बिल्ड करना, ये सब मिसेस भारद्वाज का। उनको लगा कि नहीं स्कूल के साथ-साथ कि इसके अपना घर होना चाहिए, क्योंकि मैं पेरेंट्स के यहाँ थी। ससुराल में भी एक 4 रूम का कमरा बनाया था हस्बैंड ने, पानी की सुविधाएँ हमने कर ली थी और अच्छे दिन आने वाले थे हमारे वहाँ ससुराल में भी। बट वही था कि हम फेट में ये नहीं था कि हम साथ रहें। फिर मैम को लगा कि इनको अपना घर हो जाना चाहिए, फ्लैट हो जाना चाहिए। तो उन्होंने अपने पीए को बोलकर आस-पास के सारे फ्लैट्स में देखा और मेरे लिए एक फ्लैट का डिसीज़न लिया। बट ये इतना ईज़ी नहीं था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को लगता है कि फ्लैट में हम लोग कोई रहा नहीं है और फ्लैट में कैसे रहेगी? तो वो लोग तैयार नहीं थे। फिर मिसेस भारद्वाज ने मेरे पेरेंट्स को बुलाया, उनको बोला कि आप लोग जया के साथ कब तक रहेंगे? अ, अगर जया को कल प्लम्बर का दिक्कत है, कुछ ऐसे इलेक्ट्रीशियन का दिक्कत है, तो वहाँ ये सारे हेल्प मिलती है, सारी सुविधाएँ मिलती हैं। क्या आप हर जगह उनकी जया के लिए रहोगे क्या? तो इस तरह से मैम ने उनको कन्विंस किया और फिर मेरे लिए फ्लैट बुक कराया। बिल्डर से 1 लाख रुपए कम भी कराए और उस टाइम मेरा घर 2005 में उन्होंने बुक कराया था 6,25,000 में। और सीएम को बुलाया था, सीएम के थ्रू। और मतलब मैम का जो था ना कि इसको पूरी तरह से मैं जब तक हूँ इस पोस्टिंग में इसको खड़ा कर देना है। इस तरह से मैम ने मुझे एनकरेज किया और जाने से पहले मैम ने मुझे बोला कि बीएड कर लेना है, अदरवाइज़ आर्मी स्कूल में भी इतने रेगुलर इंटरव्यूज़ और ये होते हैं, तो किसी को बोलने का मौका नहीं देना है कि यू आर हियर अ, बाय मी। तो फिर मुझे बीएड के लिए भी मैम ने इतने जगह, जितने रांची यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं, बहुत जगह मैम ने अप्रोच किया कि ये इसका हो जाए, बट वो रेगुलर था, तो रेगुलर में तो फिर मुझे स्कूल का जॉब छोड़ना पड़ता। फिर मैंने इग्नू में तैयारी किया, इग्नू के एंट्रेंस के लिए, और इग्नू के में से फिर मेरा क्लियर किया और फिर मैंने वहीं से बीएड किया
और फिर मैंने एमएड भी मैंने फिर वहीं से किया। तो इस तरह से मैंने बीएड और एमएड करके फिर आई वाज सेटल्ड इन आर्मी स्कूल। बट आर्मी स्कूल का भी ये है कि आप परमानेंट नहीं थे, हम वहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल थे। तो फिर मैंने सर को बोला कि सर मेरा बीएड हो गया, तो नहीं, यू हैव टू पास सीएसबी। अब मैं सीएसबी के लिए भी पढ़ रही थी, तो मेरा सीएसबी क्लियर नहीं था। फिर सीटेट की भी बात आ गई, बीच में सीटेट भी आ गया 2009। फिर मुझे सीटेट की भी तैयारी करना पड़ा। तो सीटेट तो मेरा क्लियर हो गया, बट सीएसबी मेरा नहीं हो रहा था। लास्टली फिर जब सीएसबी भी हो गया, सीटेट भी हो गया, फिर मैंने सर को बोला कि सर अगर रेगुलर हो जाता तो बेटर हो जाता मेरे लिए। बट सर ने बोला कि नहीं, अभी ऐसा कुछ रूल नहीं है, वैकेंसीज नहीं है, तो यू हैव टू वर्क दिस वे। तो थोड़ा-सा वहाँ आर्मी स्कूल में ये चीज़ का मुझे ये लगा कि हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, सब कुछ है, क्वालिफाइड हैं, एवरीथिंग, बट हम परमानेंट नहीं हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड ने मुझे जॉब ऑफर किया था 2005 में ही, पुलिस विभाग में, डिपार्टमेंट में। तो एज़ अ कांस्टेबल, बीइंग अ क्लर्क और अ कांस्टेबल, 3rd ग्रेड जॉब। तो मैंने सीएम जब मैम उनसे मिली थी, तो मुझे बोला गया था कि आपको टीचिंग का जॉब दिया जाएगा। बट मुझे उन्होंने टीचिंग का नहीं ऑफर करके क्लर्कियल या तो बोला कि कांस्टेबल। फिर मैं सोची छोटे बच्चे हैं, कैसे मैं उनको छोड़कर कांस्टेबल का या ये लूँगी। और मैं आर्मी स्कूल में मुझे अच्छा लग रहा था एज़ अ बीइंग टीचर, और ऑलमोस्ट सैलरी दोनों का सेम वो था। हाँ, गवर्नमेंट का है तो कुछ बेनिफिट्स उसके अलग होते हैं। फिर मैंने जॉइन नहीं किया, बट फिर मैंने लेटर लिखा अपने झारखंड में कि मेरा ऐसे-ऐसे मेरे हस्बैंड शहीद हुए थे। झारखंड गवर्नमेंट ने मुझे टीचिंग पोस्ट के लिए प्रॉमिस किया था, बट मुझे नहीं किया, उन्होंने मुझे पुलिस डिपार्टमेंट में दिया। और तब तक मैंने जेटेट भी क्वालीफाई कर लिया, झारखंड का टेट एग्ज़ाम जो है वो भी। फिर जेटेट के थ्रू फिर मैंने उनको बोला कि अब मुझे इसमें दे दीजिए। तो हमारा जो झारखंड का जो गवर्नमेंट है वो भी कभी स्टेबल नहीं रहा। एक्चुअली वो 5 इयर्स वो नहीं रहते थे, कभी 2 इयर्स, 3 इयर्स, ऐसे उसका जो टेन्योर उसका रहा नहीं। तो मेरा जो फाइल है वो कभी कहीं जाता, फिर ये हो जाता, तो मैं बहुतों से मिली, बट वो नहीं हुआ। लास्टली जब 5 इयर्स के लिए लास्ट टाइम रघुवर दास की हमारी गवर्नमेंट आया, तो फिर मैंने फिर से फाइल अपना पुट अप किया। दिस टाइम हमारे सीएम के जो पीएस थे, संजय जी, वो मुझे बहुत हेल्प किए, क्योंकि हमारे रांची से, झारखंड से ही परमवीर चक्र अवार्डी जो हमारी वीर नारी हैं मैम, अल्बर्ट एक्का की वाइफ, उनको उन्होंने देखा था कि कैसे वे भी यहाँ खेतों में काम करती है। तो उनको एक हमेशा एक मन में था कि मैं भी आर्मी जॉइन करता, बट आई एम आईएएस हियर। और कैसे हमारे जवान इतने ठंड में और इतने ये में काम करते हैं, और जब उनके साथ कुछ हो जाता है, तो उनकी फैमिली को कोई नहीं देखता है, उनके लिए कोई सोचता नहीं है। तो मैम जितना मैं हेल्प कर पाऊँगा, जितना है, मैं आपके लिए करूँगा। तो उन्होंने मेरे फाइल को बहुत आगे तक बढ़ाया, और मेरे लिए नियम भी चेंज हुए। हमारा जो इनका जो पार्लियामेंट में होता है अपना, जो पुट अप करते हैं, तो सारे नियम को शिथिल करके मुझे प्राइमरी टीचर का जॉब ये लोगों ने अलॉट किया। बट उससे पहले ही मैंने एग्जाम टीजीटी भी दिया हुआ था, तो मैंने खुद से क्लियर कर लिया टीजीटी। फिर मेरे पास 2-2 जॉब थे, बट डिस्ट्रिक्ट अलग था। फिर मैं एजुकेशन सेक्रेटरी से मिलके, फिर उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, आप अपना टीजीटी जॉइन करो, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस इन सैलरी। और फिर मैंने अपना जॉब लिया, टीजीटी मेरा ट्रांसफर हो गया। फिर मुझे अभी बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ टीचिंग फील्ड में मिला। मैं जेसीईआरटी से अभी एसोसिएटेड हूँ, स्टेट का जो जेसीईआरटी है हमारा, उसपे मैं कंटेंट डेवलपमेंट में मैंने गूगल फॉर्म से अपने वहाँ माँगा गया था, मैंने लिंक किया, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। अभी मैं बच्चों के लिए कंटेंट बना रही हूँ। मेरा कंटेंट पूरे राज्य में जाता है, और फिर तो मौका मिला अपने फील्ड में भी, अपने प्रोफ़ेशन में भी काम करने के लिए। और अभी मैं गवर्नमेंट स्कूल रांची में एज़ अ टीजीटी साइंस टीचर हूँ, और बच्चों के साथ जुड़ी हुई हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मैं उन ऐसे बच्चों के लिए काम कर रही हूँ,
जो एकदम अंडर प्रिविलेज हैं, कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी कभी इनके जैसी ही थी। मतलब ये बच्चे जो गाँव के हैं, खेतों में काम करते हैं और फिर स्कूल भी आते हैं। जब खेती के दिन आते हैं तो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते हैं, तो मैं उनको समझाती हूँ कि पढ़ाई का जो इम्पोर्टेंस है, वो बहुत है। लाइफ कभी भी आपको कुछ भी चेंजेस ला सकता है और यही एजुकेशन है जिससे आप लड़ सकते हैं। तो ये एक छोटी-सी मेरी स्टोरी थी मैम, जिसमें मतलब मुझे लगता है कि मिसेस भारद्वाज आई तो और जो आवा का सपोर्ट मिला, मैम तो यहाँ से चली गई, 3 इयर्स वो रही थी यहाँ और उन्होंने मुझे जब वो जा रही थी, मैंने एक छोटा-सा उनके लिए स्पीच भी दिया था मैंने तैयार करके और मैंने उनको बोला कि मैम आप चले जाएँगे फिर मेरा क्या होगा? क्योंकि आपने जितना किया पता नहीं जो अभी आएँगे वो करेंगे। बट उसके उस टाइम मैम ने हम जितनी वीर नारी थे, उनको उन्होंने डिवाइड कर दिया यहाँ रांची में, अलग-अलग जितने सारे यूनिट्स हैं। तो अभी मैं यहाँ 8 महार है, 8 महार के अंदर भी हूँ और ये लोग हमें लुक आफ्टर करते हैं। मतलब अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो वो हमें सपोर्ट करते हैं और मैं एकदम फ्री हूँ और बहुत अच्छे सीईओ सर, मैम रेगुलर हमें इस तरह ज़ूम पे भी अभी कोविड है तो वो लोग बात करते हैं और बहुत हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट टाइम जब मैं आवा मीटिंग पे मुझे बुलाया गया, तो हमारे झारखंड से भी बहुत आई हुई थी, बहुत गैलेंट्री अवॉर्डीज़ भी थे उसमें। तो मैंने उनसे पूछा कि फ़ौज क्या करता है? कुछ होता भी है? मुझे मतलब बहुत सारे क्यूरीज़ थे, क्वेश्चन्स थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा तो बुलाते हैं, आते हैं, कुछ गिफ्ट लेते हैं और फिर हम चले जाते हैं। बट ऐसा नहीं रहा। मैंने देखा कि हमारी आवाज़ सचमुच यहाँ कुछ करती हैं और वो पेन लेती है हमारे रूट लेवल तक, हमारे प्रोफ़ेशनल, पर्सनल हर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती हैं। तो एक कहीं न कहीं हम सराउंडेड हैं मैम एक प्रोटेक्टिव ये से और अभी भी मुझे लगता है कि हम बहुत सेफ हैं। हमारे जो डिपार्टमेंट है कहीं मतलब निस्वार्थ करते हैं क्योंकि मैं अभी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रही हूँ तो बिना पैसे के बहुत बार एक फाइल इधर से उधर नहीं होता। इवन हमें अपने काम कराने के लिए अपना पैसा लीव सैंक्शन कराने के लिए पैसे देने होते हैं। बट हमारा जो डिपार्टमेंट है, हम हमारा डिपार्टमेंट एकदम निस्वार्थ हर जगह हमारे लिए खड़ा रहता है। So this was my story, ma'am. So it is so inspiring, Mrs. Jayaprabha Mahato, and I'm sure you will become an edu leader, a principal of a good school, and all your students will get to learn a lot from you, and you are a great inspiration. We are proud of you, and my salutes to you and your family. Thank you, ma'am. So dear viewers, I hope you enjoyed this video and you feel inspired when you listen to Mrs. Jayaprabha Mahato, who is the wife of Lance Nayak Rajkumar Mahato from Jharkhand, who belonged to the Jat regiment. It was an inspiring story. It was a inspiring recollection of her journey from grade 10 to what she is today. And she is one of the best educators in Jharkhand, if I may say that, Mrs. Jayaprabha Mahato. And we are grateful to you for your service and the service of your family. Stay safe and Jai Hind.